Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 11, Organic Chemistry. Today we will discuss exercise short question and then we will discuss exercise long question or extensive question. Clear? Now start our today's lecture by discussing exercise short question. Here we have first short question. What is meant by term catenation? Give an example of compound that display catenation. बेटा आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या है, उसमें टू दी पॉइंट आंसर मांगा गया है तो टू दी पॉइंट आंसर ही देना है. Here we have the term catenation. आप उसको डिफाइन करेंगे. The ability of carbon atom to link with one another to form long chain or ring is called catenation. Then आप उसके कोई से भी एग्जाम्पल दे के आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो कैसे कैटिनेशन की एबिलिटी को प्रूव करते हैं. ठीक है, यहाँ हमारे पास एन ब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है. आप ये भी बता सकते हैं एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, just with the addition of single carbon and hydrogens we can make many more compounds, long chains or cycles or aromatic compounds. Clear? Second short question is how is coal formed? अब बेटा इसमें टू दी पॉइंट आंसर आपने इस तरह से देना. आप कोल की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो आपका टू दी पॉइंट आंसर नहीं है. यू मस्ट हैव टू राइट फॉर्मेशन. So formation of coal is coal was formed by decomposition of dead plant buried under earth crust million of years ago. Conversion of wood into coal is called carbonization. It is very slow process. It takes place in the absence of air under the pressure and high temperature over a long period of time, about 500 million years. आप कम से कम ये पॉइंट लिखें अगर एग्जामिनर आपको फुल 2 मार्क्स दे. क्लियर? What is the importance of natural gas? Natural gas हमने पीछे डिटेल एक्सप्रेस की है, एक्सप्लेन की है. उसमें से आपने उसकी इंपॉर्टेंस लिखना है, उसकी यूजेस लिखने हैं. Natural gas is used as a fuel in home as well as in industry. It is used as fuel in automobile and as a compressed natural gas. It is also used to make carbon black and fertilizers. Clear? अगर आप जस्ट इसकी डेफिनेशन लिख दें तो वो आपके लिए यहाँ पे यूजलेस है बिकॉज दे डिमांड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस. क्लियर? नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन. जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज फूड. हमने डिटेल ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस पढ़े थे. सो हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट uses of organic compound as food. So the food we eat daily such as milk, egg, meat, vegetables contain carbohydrate, protein, fats, vitamin, all are the source of organic stuff. Clear? Fifth question. How are alkyl radicals formed? Explain with the example. You just have to write the formation or the point for alkyl radical. That alkyl are derivatives of alkanes. They are formed by removal of one hydrogen from alkanes. They are represented by letter R. Their name is written by replacing an of alkane with il. While then their general formula is this, and you must have to write example at the end because in question it demand for example. So propane आप उसका formula लिखें, फिर उसका radical और उसका name भी लिखें. Propyl, butyl, pentane. Clear? इस तरह से आप उस आंसर को अच्छे तरीके से देंगे. Question number 6. What is the difference between n-propyl and isopropyl? Explain with the structure. बेटा आप लोग कॉलम बनाएंगे इसका. ठीक है, n-propyl isopropyl का दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे टर्न बाय टर्न और मस्ट है कि फिर आप उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिखें. प्रोपेन which is form n-propyl जब आप उसका टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें, and प्रोपेन जब आप उसका सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करें तो इट इज फॉर्म आइसोप्रोपाइल. इस तरह से आप इसका डिफरेंस मेंशन करेंगे. क्लियर? Now explain different radical of butane. Butane has two isomers. So isobutane आपके पास n-butane आ जाता है और isobutane आ जाता है. इनके स्ट्रक्चर आपने डिटेल इस तरह से मेंशन करने हैं. क्लियर? हमने इसकी डिटेल डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में किया, वहां से जाके आप कॉन्सेप्ट को दोबारा से ग्रैब कर सकते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल. फंक्शनल ग्रुप आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप उसकी एग्जांपल देंगे. ठीक है, कोई दे सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि एक ही हो. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप? राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसिडेट. हियर वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर. द जनरल फार्मूला इज दिस. Their R and R are alkyl group. They may be same or different. और आप इथाइल एसिडेट की फार्मूला भी वहां नेसेसरी लिखेंगे because question demand this. Clear?
Now we have another question. Write down the dot and cross formula of propane and N-butane. Here we have propane and N-butane dot and cross formula. इसी तरह से आप उसको represent करेंगे by representing the dot and cross of different elements in single compound. Clear? Define structural formula. Draw the structural formula of N-butane and isobutane. Clear? अब आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, देन यू मस्ट हैव टू राइट इट्स फार्मूला एंड देन N-butane और isobutane का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप इस तरीके से मेंशन करेंगे. ठीक है, आप अगर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को वहां पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी बिकॉज क्वेश्चन डिमांड दिस. Another question is write classification of coal. अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है. Classification means types of coal, not the product of coal. So you must have to write types of coal like peat, lignite, bituminous, and anthracite with the carbon content. What are heterocyclic compound? Give two example. आपके पास heterocyclic compound की definition मौजूद है, उसको लिखेंगे और आप उसकी दो example necessary देंगे with प्रॉपर स्ट्रक्चर. आप N और S की स्पेस को, डबल बॉन्ड की स्पेस को नहीं हिला सकते, सो इसकी प्रैक्टिस करें और इसी तरह इसको अटेम्प्ट करें. Another question is why are benzene and other homologous compound of benzene are called aromatic compound? आप इसके पॉइंट इसी तरह से जस्टिफाई करेंगे एंड देन एट द एंड आप उसकी एग्जांपल्स भी देंगे. ठीक है, बेंजीन की और नेफ्थलीन की, तो ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं. क्लियर? Now we are going to discuss extensive question of exercise. First of all, we have question number 1. How is coal formed? What are different types of coal? ये A part है इसका. So सबसे पहले coal की definition लिखें because it is a long question. So start it like a great effort to gain marks. So you must have to write definition for putting a nice impression on examiner. Definition लिखी, then you will move on to discuss its formation. और फॉर्मेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आप डिटेल उसकी डिस्कस करेंगे. क्लियर? सारी की सारी फॉर्मेशन आपने उसकी डिस्कस करनी है फ्रॉम योर बुक एंड देन एट द एंड यू मस्ट हैव टू राइट टाइप्स ऑफ कोल. और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसने डिमांड ही सिर्फ टाइप्स ऑफ कोल की है और फॉर्मेशन आपने डिटेल डिस्कस करनी है. बुक में टोटल इसका डाटा मौजूद है, वहां से आप पिक करें. लेक्चर्स में भी हमने इसको डिस्क्राइब किया, वहां से आप जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. क्लियर? Now the second part of first question is write down the composition and uses of different type of coal. अब इसमें आप कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिख सकते, नो डेफिनेशन, नथिंग मोर. आपने इसमें सिर्फ कार्बन कंटेंट लिखना है, उसका यूज लिखना है. सो द बेस्ट वे इज टू फॉर्म अ टेबल लाइक दिस, नेम, कार्बन कंटेंट एंड इट्स यूज. आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं. इट्स अप टू यू. क्लियर? The second long question, A part, is what is destructive distillation of coal? तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक स्पेसिफिक वे होता है. सबसे पहले आप उसकी इंपॉर्टेंस बता दें. कोल हैज बिकम मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. देन आप उसकी डेफिनेशन को मेंशन करें कि एब्सेंस ऑफ एयर में हम जब कोल को हीट करते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं. ठीक है, कोल कंटेन एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड along with a few inorganic compound. Clear? The second part is this, name the different type and product obtained by destructive distillation. अब ये सेकंड पार्ट है, उसने एक पार्ट के साथ उसको ज्वाइन किया, तो आप उसमें लिखेंगे नेम द डिफरेंट जो है नेम्स आप उसको मेंशन करेंगे और एज फॉलोज. आप उसका टर्न बाय टर्न कोल, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल चार, कोक, ये सब आपने बताने हैं. लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको डिस्क्राइब भी करेंगे. अब अगर कलेक्टिवली चारों का कह दिया है तो कम से कम आप 1 मार्क और 1.5 मार्क के अकॉर्डिंगली सबको डिस्क्राइब करें. बट इफ दे मेंशन राइट अ नोट एनी टू, तो आप किसी भी टू को डिटेल एक्सप्लेन कर दें. क्लियर? Third question, write a detailed note on a functional group of alkenes and alkynes. How are they identified from other compounds? हमने बेटा इनकी डिटेल डिस्कशन की है. आप किस तरह से आंसर अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे अल्कीन विद 2 एग्जांपल. देन यू मस्ट हैव टू डिफाइन अल्काइंस विद 2 एग्जांपल. बुक में एक डिटेल अच्छे तरीके से मौजूद है, लेक्चर में मौजूद है, वहां से पिक करें. देन आप उसका हमने भी डिस्कस किए हैं इसी लेक्चर के टॉप पे. टेस्ट प्रीवियस लेक्चर में, इसी वीक के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. और वो दोनों टेस्ट आप लिखेंगे. नंबर 1 इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड अदर इज बेयर्स टेस्ट. ठीक है, आप ये लिखेंगे. इस तरह से आपने डिटेल इन हेडिंग्स के साथ
अपना ये क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। क्लियर? गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। आपकी बुक में डिटेल हेडिंग्स के साथ ये टॉपिक मौजूद है, हमने डिस्कस भी किया, जाके वहां से आप कॉन्सेप्ट ग्रैब करें। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास यूज एज फूड, एज क्लोथिंग, एज हाउसेज, एज फ्यूल, एज मेडिसिन, एज रॉ मटेरियल। आपने इन 6 हेडिंग्स को डिटेल डिस्कस करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आपकी बुक में विद हेडिंग डिटेल डिस्कशन मौजूद है, वहां से आप इसको पिक करें और लिखें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है इसका तो प्रीवियस लेक्चर में जाके इसका कॉन्सेप्ट भी ग्रैब करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। आपके पास होमोलोगस सीरीज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किए गए हैं। आप पहले डिफाइन करेंगे होमोलोगस सीरीज को, देन आप वो 5 कैरेक्टर लिखेंगे। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया, आप वहां से पिक कर सकते हैं और आपके बुक में भी ये टॉपिक डिटेल डिस्कस किया गया है। सो वहां से आप उसी तरह से इन पॉइंट्स की फॉर्मेशन में ही क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। क्लियर? Sixth question, what are organic compound? Why are organic compound numerous? इसमें बेटा अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को कि क्या क्या इसमें करना है, क्लासिफिकेशन आएगी क्या आएगा। तो बेटा उन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा क्यों होते हैं। तो बेटा इसमें आपके आंसर में डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड का कंप्लीट टॉपिक कवर होगा, जिसमें आप लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। ये डिटेल डिस्कशन होगी विद हेडिंग्स आपकी बुक के अंदर ये मौजूद है, वहां से आप इस आंसर को लिखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से हेडिंग्स के साथ। क्लियर? व्हाट आर अमाइंस? Explain different types of amine, give an examples of each type, how primary amino group is identified। इसी वीक के लेक्चर्स में हमने ये सारा डिस्कस किया है। सबसे पहले आप अमाइन की डेफिनेशन लिखें, देन उसकी तीनों एग्जांपल लिखें, दीज आर द टाइप्स लाइक दिस, एंड देन आप उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को भी मेंशन करें। क्लियर? Another question, describe the functional group of alcohol, how are alcohol group identified। सेम फॉर दिस आप फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे अल्कोहलिक ग्रुप का विद एग्जांपल, देन आप उसका टेस्ट भी लिखेंगे। 2 टेस्ट हैं, आप दोनों के दोनों मेंशन कर दें। क्लियर? डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, हाउ आर बोथ आइडेंटिफाई फ्रॉम ईच अदर। इसमें आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले आप कॉलम बना के इनकी डिफरेंशिएशन फैक्टर लिखेंगे, डेफिनेशन डिफरेंस और फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस, देन यू मस्ट हैव टू मेंशन देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, स्पेशली फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्लियर? Now we are going to discuss encircle the functional group in a following compound. Also give the name of functional group. Here we have number 1 and 2। अब इसमें से आपने पहले फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करना है। नंबर 1 में आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप सर्कल हो गया, इसका नेम कीटोन। नंबर 2 में देखना है, नंबर 2 में आपने फंक्शनल ग्रुप को इंसर्कल किया और ये किसको आइडेंटिफाई करवा रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का। क्लियर? इसी तरह से आप इसको अटेम्प्ट भी। क्वेश्चन नंबर, अब इसका पार्ट 3 आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को पहले इंसर्कल किया और फिर इसके नीचे मेंशन किया इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में आपने पहले फंक्शनल ग्रुप को इंसर्कल किया और फिर ये फंक्शनल ग्रुप किसको, कौन सा है, एल्डिहाइड्स का। सो हियर वी हैव एल्डिहाइड। पार्ट 5 में आपने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को सर्कल किया विच इज डबल बॉन्ड ओवर हियर, सो इट इज अ फंक्शनल ग्रुप अल्कीन। And part 6 have functional group this, so it is a functional group like ester. Clear? Question number 11, what are the general properties of organic compound? आपकी बुक में डिटेल टॉपिक विद हेडिंग डिस्कस किया गया है, ये सारी हेडिंग्स हैं। आप इन सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए इस टॉपिक को जो है अटेम्प्ट करेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बुक में इन हेडिंग्स के साथ डिटेल डिस्कशन मौजूद है, वहां से आप इसको पिक करें। राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने डिटेल डिस्कशन भी किया अपने लेक्चर में, ये आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन है। आपने इन सब को डिटेल डिस्कस करना है, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, इन सब की फर्दर जो टाइप्स है उसको भी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। क्लियर? इस तरह से आपने इन सब लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है।